Hello, good evening, everyone. Today we are celebrating World Arthritis Day. So today we have a special guest with us. So he will be live within 2 minutes. So just wait for 2 minutes for the live streaming with Dr. John Ebnezar. We are just waiting for 2 minutes. So, yes. Hello. Hello, sir. Hello, Sir, Dr. Rashmi. hello, sir. How are you, How sir? are you? Fine, sir. So after a You long are time, you are you are looking very trim, and you are doing the weight loss program on yourself. thank you, Huh? sir. So we are now live on Okay. Facebook and YouTube. Okay. Right. Yeah. Uh, just 1 second. Welcome you all for the world for this webinar with Dr. John Ebnezar on this World Arthritis Day. So let me introduce first, sir, and first of all, thank you for Thank accepting you. the invitation in a very short span and within your busy schedule. So I really appreciate Thank your you. time. And Thank you. Thank you, Dr. Rashmi. Thanks for the invite. sir, thank you so much. So Dr. John Ebnezar is a Padmashri Awardee, two times national awardee, the Dr. B.C. Roy National Award. For it is a highest uh, medical award in India, and he did his MBBS, MD, and PhD and DNB in orthopedics, and he has wrote around 200 books in orthopedics. He is a TEDx speaker and a motivational speaker, and two-time lifetime achievement awardee, and also an researcher, a national and international repute. And he is a founder, president, Geriatric Orthopedic Society of India, Government of India, and he is also an orthopedic geriatric orthopedic surgeon and also a holistic orthopedic expert. And presently, he is practicing in Parimala Healthcare Services, Bangalore. So we welcome you, sir, for this webinar, and also a Guinness World Record holder. Thank you, sir, for accepting and joining this live session. So, it will be an Q&A session. So, for this, first of all, we'll start with, so just brief us about, actually, we have already so many misconceptions also, and so many myths about arthritis and everything. So let us start with how we can understand and how we can firstly early symptoms of arthritis as a patient can understand. Okay. Thank you, Rashmi. Thanks for the introduction, and thanks for all the nice words you spoke about me. Now, to understand the presentation about arthritis, the problem about arthritis, first we should know what is arthritis, right? So arthritis is inflammation or disease of the joint.
We have 65 joints in the body. When the joints, get inflamed, when the, pain, swelling, movement restriction happen, then you are suffering from a joint problem. Just joint pain is not arthritis. That is called arthralgia, right? It can happen because of injury, sports injury, or fall, or something like that. Then what is arthritis? Arthritis is inflammation of the joint. It is not just pain of the joint. Inflammation happens because of diseases. For example, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, like that. So there what happens is there will be inflammation of the joint structures like cartilage, synovium, and other structures of the joint, and the patient develops pain. There are 100 types of arthritis, right? So it is, not so easy that, when I say arthritis, we mean one or two diseases. It could be anything. There are 100 types of arthritis. But the most common among these 100 type of arthritis is osteoarthritis and rheumatoid arthritis. These are the two very common problems. Osteoarthritis is wear and tear arthritis. In other words, if you see in elderly people, old age arthritis, OA we call it, osteoarthritis, OA, old age. So old age arthritis. That is the most common type of arthritis. What happens is old age arthritis, because of the aging factor, the whole body ages, so the joint also ages. When the joint ages, there is a joint covering called cartilage, right? That is an inner joint covering which covers the bone ends, like the lower end of femur, upper end of tibia, is covered by a fibroelastic structure called cartilage. How to understand? See, now you wear the footwears, and footwear, have as a rubber cushion. Similarly, there is a cushion inside the joint, the cartilage. So the cartilage covers the bone end. Now what happens as you walk, as you now move, slowly the joints wear off, like how your footwear wears off. See, when you take a footwear after 2 months, 3 months, 6 months, the footwear wears off. The footwear becomes flat. Why? Because of the wear and tear of the cushion of the footwear. Similarly, the joint footwear, what we call as cartilage, which is inside the joint, is just 0.5 millimeters or very thin 2 millimeter structure. Just 2 millimeters. That means around 4.5 centimeters. Right. So 2 millimeter joint cartilage is there covering the bone. And from womb to tomb, that means from the day you are born till the day we exist. See how God has created it. Only 2 mm thickness of cartilage has to last the lifetime. Otherwise what happens? If the cartilage wears off, then you develop a disease called osteoarthritis. What happens if the cartilage wears off? What happens if your footwear, if your chappal develops hole inside the footwear? You start, getting pain because your foot will come in touch of the ground and pebbles, stones, thorns will prick you because there is hole in the footwear. Similarly, when there is a hole in the cartilage, the bone ends get exposed and the bones develop bone end-to-end contact, and the person will have enormous pain. So once the cartilage wears off in a disease called osteoarthritis, then the bone ends get exposed and you develop pain. Along with pain, you develop swelling, limb, restricted mobility because the entire joint, the plant joint, the whole joint gets affected. So this is the most common type of arthritis. The presentation is old age, pain, limb, swelling, movement restriction, difficult to squat, difficult to do your day-to-day activities, and all this, is the symptoms and signs of osteoarthritis. Now, the second type of arthritis is the rheumatoid arthritis. It is totally 360 degrees opposite of osteoarthritis. Sir, This sorry is to a interrupt. Can we do a systemic disease. conversation? Rheumatoid arthritis is a systemic disease and it is an autoimmune disease.
Sir, your disorder. voice is little cracky. What do you mean by Sir, your autoimmune voice is little cracky. disorder? Your whole body acts against you, like Uh, how a family member, you know, becomes a rogue instead of taking care of the parents and the family. He becomes a villain. He tries to, trouble the parents or the siblings. A rogue son or a rogue child. Rogue means the parasites that it is going to act against the body so your voice is in between. It's cracky, sir. And we're not able to listen you. Sorry for inconvenience. I'll just try to connect. So you can ask the questions. So actually, your voice was cracking and you are disconnected in between. Sir, can you? Yes, Am yes, I there was some audible? network issue, I guess. Suddenly it went off. Then Yeah, again I had to rejoin. yeah. Yes, So yes, okay, sir. very clearly. So can we? Yes, sir. Am I Can we audible do to the you? conversation? Yeah, yeah. You are audible, sir. Can we do the conversation in Hindi, sir? Is it comfortable for you? Fine, not an issue at all. Okay, okay, Chalo, sir. no problem. So, yeah. So, Yeah. sir, let me ask the next question for this, which will may help people more. What are the steps that we can take to for the early, to prevent the early degeneration of this cartilage? Just you are explaining कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं You want me इस to आर्ट answer? Okay, you want me to answer in Hindi or English? या हम कैसे उसको रोक Hindi. सकते हैं कि क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए अच्छा, अर्ली तो आप डिजनरेशन या जानना चाहते हैं डिजनरेशन कि हाँ हाँ ठीक है, चलो रश्मि जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीज जनरेशन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो ओके एजिंग फिनोमिना, दैट्स एन एजिंग ओके प्रोसेस। आपको कोई बोलेगा कि आप जैसे जैसे एज होते जाएंगे आपका बाल सफेद नहीं होना है, ऐसा करना है बोलिए। बाल सफेद नहीं होना है, आंख धुंधला नहीं होना चाहिए, कान हमारा वीक नहीं होना चाहिए, चमड़ा जो हम 16 साल 17 साल 20 साल में चमड़ा था ना, ऐसे ही चमड़ा होना चाहिए। हमको एजिंग दिखना नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट? इट्स अ नेचुरल phenomenon ऑस्टियोआर्थराइटिस yes बीमारी, हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी जो है वो वेर एंड टेयर बीमारी, ओल्ड एज की बीमारी है, जहाँ पर कार्टिलेज मसल्स और लिगामेंट बूढ़े होते जाते हैं, हड्डी भी बूढ़े होते जाते हैं। तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन ओके ऑस्टियोआर्थराइटिस हम उसका सिम्टम्स जो है और उसका इफेक्ट्स जो है वो उसको कम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर एक अच्छा सा एक प्रोटोकॉल है जो आर्थराइटिस जॉइंट्स केयर कर रहा है, जॉइंट्स केयर करेंगे तो आपका जॉइंट जो है जल्दी जल्दी नहीं घिसेगा। ये घिसने वाली बीमारी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज घिसावट, जॉइंट yes कार्टिलेज घिसावट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो घिसावट हम कम कर सकते हैं। कैसा कम okay करना है? पहला, आपका लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल जो okay है वो रिस्क फैक्टर्स होती है। देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स, हर एक बीमारी के लिए एक रिस्क फैक्टर होती है। वो रिस्क फैक्टर बोले तो क्या, और जो फैक्टर्स की वजह से बीमारी आती है, तो कौन सा रिस्क फैक्टर है? एक है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जो बदला नहीं जा सकता है, उसे आपको एक्सेप्ट करना है। और रिस्क फैक्टर क्या होती है? एक एजिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट एजिंग, यू कैनॉट चेंज, यू yes कैनॉट स्टॉप एजिंग। दूसरा, हमारा रेस, वी बिलोंग टू एशिया, एशियन कम्युनिटी, तो एशियन रेस, तो एशियंस में आर्थराइटिस ज्यादा कॉमन है। When I say arthritis, it is osteoarthritis. Please mind it, right? I'm not okay doing a general discussion. It is osteoarthritis. Third, female sex.
3:1 रेशियो, 3 महिला 1 पुरुष। तो इट इज कॉमन, ये हम नहीं बदल सकते, Okay. लेकिन देर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। क्या है? हमारा जीवन शैली जो है उसको आप कंट्रोल करेंगे तो आप घिसने का, जॉइंट घिसने का प्रक्रिया जो है उसको आप कम कर सकते हैं। कैसा? मोटापन, ओबिसिटी। अगर आप ओबीज हैं तो ये समझना चाहिए कि जितना आपका हाइट होती है उतना आपका वेट होना चाहिए। इसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। आप अगर Yeah. 5 फुट के हैं तो आपका वेट होना चाहिए 50। अभी 5 फुट के हैं और आप 60, 70, 80 वेट है तो आपका जो वेट है ज्यादा है। हेलो, 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 Yes, sir. Yes, sir. I'm listening. Yes. हेलो Yes, sir. रश्मि Please जी। continue. हाँ, Yes, sir. आप You चले are गए थे? audible. No, no. I was आप just a किधर चले गए थे? backstage. No, no. I was just a ठीक है, backstage to listen. Yeah. हाँ, मैं समझा आप आर्थराइटिस सुन के डर गए। No, sir. I was just a चलो, backside just to so highlight your. राइट, सो Yeah. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मीन्स व्हाट? बोले तो हम ये रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई, बदल सकते हैं। ठीक Okay. है, वो अपने कंट्रोल में है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हमारा कंट्रोल में नहीं है। जैसे फिर मैं Okay. रिपीट करता हूं, एजिंग, रेस, सेक्स इज नॉट इन आवर कंट्रोल। Okay. लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, मोटापन। अगर आप ज्यादा मोटे होंगे तो आपका लोड, जो घुटना होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन इन घुटना, इन नी जॉइंट्स। ठीक, नी Okay. जॉइंट्स आर वेट बेयरिंग जॉइंट। जैसे आप खड़े होते हैं, आपका पूरा वजन जो है नी जॉइंट के ऊपर पड़ती है, तो आपका वजन उठा के चलना पड़ता है कार्टिलेज को। तो अगर आप मोटे मोटे हो तो ज्यादा वेट पड़ेगा, 30 to 40% लोड ज्यादा हो जाएगा और और कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाएगा। तो आपको मोटापन कंट्रोल करना है। कैसा कंट्रोल करना है? खाने में शिस्त रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, हाँ, और जंक फूड्स मत खाइए, हाँ, और ऑयल फूड्स कम कीजिए, हाँ, और अपना प्राणायाम योगा कीजिए और वेट कम कीजिए। अगर वेट अपना हाइट के हिसाब से अपना वेट है तो आपका जॉइंट आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलेगा कि आपने उसके ऊपर लोड नहीं डाला। Okay. सेकेंड, Okay, sir. स्मोकिंग एंड अल्कोहल। Okay. स्मोकिंग एंड अल्कोहल मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर। Okay. उसको आप बंद करना है, कम नहीं करना है, बंद ही करना है। कुछ लोग Okay. Yeah. People say I'm an occasional drinker. So कभी कभी ले सकते हैं क्या? So it's always the question. I think sir network is little fluctuating. We'll get back to him again. So keep putting the questions. Yes, I got 2 questions in Facebook. So we will ask once he is on live again. Rajesh ji, it's not hereditary. There are 120 types of arthritis. उसमें से ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक है, बट सभी आर्थराइटिस हेरिडिटरी नहीं है। कुछ आर्थराइटिस है जो हेरिडिटरी होते हैं, बट सारे आर्थराइटिस हेरिडिटरी नहीं होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो हेरिडिटरी नहीं है। वो हमें अपनी कार्टिलेज जो 2 mm की कार्टिलेज जो हमारी नी जॉइंट के ऊपर रहता है, तो वो नी जॉइंट की वो ऊपर जो कार्टिलेज घिसने से ही वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आती है। जो हेरिडिटरी से ऑस्टियोआर्थराइटिस आती है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं बोलते हैं। उसकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या रिस्क फैक्टर्स है, उसके लिए जो हमें प्रिकॉशंस या मेडिसिन जो लेना है, हमें एक फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके ही हमें लेना है। जैसे सर बता रहे थे, या वी आर बैक विद सर। Yeah, we will ask Rajesh ji the question of rheumatoid arthritis is hereditary or not.
Sir, there are a few questions. We got it now. Sir, am I audible now? Yes, sir. Okay, right. Yes, sir. What are the questions? Please choose the question. Sir, yeah. So, is taking calcium good for arthritis? So it's a question like when or long term. They mean to say कि whether we can take the calcium supplements for arthritis or when to take it. See, How calcium long? is good for the, you know, हाँ, right. फॉर द बॉडी जो शरीर के लिए ठीक है वो जॉइंट के लिए भी ठीक है, राइट। कैल्शियम तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बॉडी में, और उसका हार्ट का फंक्शन हो या ब्रेन का फंक्शन हो या नर्व का फंक्शन, इसमें बहुत इसका महत्व है। हड्डियों में क्या उसका महत्व है, ठीक। इट इज द स्ट्रक्चरल, आई मीन इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द बोन। कैल्शियम जो होती है, 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम बोन में डिपॉजिट होती है। तो कैल्शियम क्या क्या करती है, आपका बोन को स्ट्रांग रखती है, ठीक है। अगर आपका कैल्शियम कम हो जाएगा तो आपका बोन्स वीक हो जाएंगे। अगर बोन्स वीक हो गया देन तो नेचुरली आपका हड्डी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम आएंगे। आपका आर्थराइटिस डायरेक्ट रोल नहीं है कार्टिलेज में, लेकिन ओवरऑल आपका मसल्स, आपका जॉइंट्स, आपका हड्डियां वीक होते जाएंगे कैल्शियम कम हो गए तो। कैल्शियम सप्लीमेंट शुड बी टेकन। अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो सिर्फ Okay. कैल्शियम ऐसे ही नहीं खाना है। सो हाँ हाँ. बुजुर्गों में 60 70 या 80 के बाद तो थोड़ा विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन कम होती है, तब ले सकते हैं। यंगस्टर्स में जो एक्टिव हैं, यूथ्स हैं, और महिलाएं जो 40 ईयर्स के लेस होती हैं, उनको कैल्शियम की सप्लीमेंट की जरूरत है। कैल्शियम Okay. खाने में मिलती है, फूड में मिलती है, दूध में मिलती है, सब्जी में मिलती है, वो लेने रागी में मिलती है, वो बस है आपको। सप्लीमेंट जब आप ये शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कैल्शियम लेवल जो 8 से 10 होना चाहिए बॉडी में, वो उससे कम है तो लेना है। तो सप्लीमेंट कब Okay. लेना है, अगर आपका ब्लड टेस्ट में अगर आपका कैल्शियम 6 7 ऐसा है तब लेना है। अगर आपका कैल्शियम नॉर्मल है, 9 10 है, देन यू शुड नॉट टेक कैल्शियम। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। अगर आप कैल्शियम, आप जब आपका बॉडी में नॉर्मल है, अगर आप कैल्शियम लेंगे देन इट बिकम एक्सेस। एक्सेस कैल्शियम विल कन्वर्ट इनटू स्टोन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, देन यू हैव प्रॉब्लम। तो सिंपल से ये बोलना है, कैल्शियम कमी बुजुर्गों में होती है, यंगस्टर्स में ज्यादातर नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपको कैल्शियम लेना है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। पहला कैल्शियम ब्लड टेस्ट कीजिए, विटामिन डी ब्लड टेस्ट कीजिए, अगर कम है तो लीजिए। अगर बिना ब्लड टेस्ट के डोंट टेक कैल्शियम, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। ओके. ओके। यस. सर, अगर हम 40 की उम्र में के बाद या 50 की उम्र के बाद जैसे आपने बताया कि हमें कैल्शियम लेनी चाहिए, क्या हमें कितनी ड्यूरेशन जैसे ब्लड टेस्ट करके ही हमें डिसाइड करनी है या आज बताते हैं कि 3 महीना लेना है फिर कम करना है? वो पूछ रहे हैं सर, हमें राजेश जी पूछ रहे हैं कि कैल्शियम मछली हम जी, 3 महीना हाँ। छोड़ सकते हैं क्या या उसकी रिएक्शन कुछ होती है क्या? मैं रश्मि जी, आपको मैं समझाता हूँ, देखिए, ऐसे ही आपको उम्र के हिसाब से कैल्शियम नहीं लेना। ओके. आप अगर कोई अगर आपको बोलेंगे कि आप बीपी गोली शुरू कर दीजिए, शुगर की गोली शुरू कर दीजिए, बिना टेस्ट के आप शुरू यस. करेंगे? बिना नहीं, टेस्ट के नहीं, आप शुरू करेंगे? सी, नहीं कैल्शियम करें. बिना टेस्ट के नहीं लेना है। इवन यस. बुजुर्गों में भी पहले ओके. आप टेस्ट कीजिए। हुँ, अगर कम है तो लीजिए, सिंपल सी बात है। ये एक मिथ है, ओके. नहीं लेना है। 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, चलो कैल्शियम शुरू कर देंगे, नहीं होता ऐसा। आपको ब्लड टेस्ट कीजिए, कैल्शियम कम है तो लीजिए, और नहीं. कम है तो लीजिए, और 3 महीने, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बाद और एक बार ब्लड टेस्ट कीजिए, हुँ, फाइंड आउट
कि आपका ये कैल्शियम जो कम था नॉर्मल आ गया है क्या देखो, आ गया तो बंद कर दीजिए, नहीं आया तो कंटिन्यू कीजिए। ये ड्रग Okay. होती है, सप्लीमेंट है, वो एक ड्रग होती है, यू हैव टू बी केयरफुल विद द ड्रग्स। Yes, this is an important message, sir. People nowadays are taking the supplements with so many companies as they're selling in network marketing also. They are keep selling the calcium irrespective of the blood report. मतलब ब्लड रिपोर्ट में क्या है वो सोचते ही नहीं है, वो कंटिन्यूसली लेते रहते हैं। आपकी ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी अगर ब्लड टेस्ट में कम है तभी हमें लेना है, अगर हमारी उम्र कितना भी हो हमें ब्लड टेस्ट के ऊपर ही निर्भर रहना है। सर और एक क्वेश्चन है डेफिनेटली। कि यहाँ पे सर आर्थराइटिस नंबनेस को पैदा कर सकता है क्या? ये एक क्वेश्चन हमें आया है यहाँ पे। नहीं, नहीं, आर्थराइटिस हमने इसको पैदा नहीं कर सकता। क्यों? वाई? क्योंकि नमनेस जो होती है वो नर्व की बीमारी है। नर्व के ऊपर कंप्रेशन पड़ने से, नर्व दबने से नमनेस हुँ, होती है। लाइक अच्छा फॉर ओके, एग्जांपल, डिस्क में अगर, बैक में अगर डिस्क जाके आपका नर्व को टच करेगा, आपको हुँ, सियाटिका होगा, सियाटिक होगा, नमनेस आएगी। लेकिन आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट की बीमारी है। से टोटल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। जॉइंट इज अ ओके, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। हुँ, नर्व्स इज नर्वस सिस्टम। नमनेस एन से स्टार्ट होती है, एन, नमनेस, हुँ, नर्वस सिस्टम। ठीक है? हुँ, तो इट इज नॉट द सिम्टम ऑफ आर्थराइटिस। ओके, Numbness is a symptom of nerve problem like diabetes, peripheral neuropathy, yeah, disc problem, हुँ, yeah, हुँ, some nerve injuries, leprosy, ये कारण की हुँ, वजह से आपको नमनेस हो सकती है, आर्थराइटिस की वजह से नहीं। ओके, ओके। सर आप सर आपने एक होलिस्टिक आपने एक रिसर्च किया था, पीएचडी रिसर्च, जैसे हमने इस वैसा यूनिवर्सिटी में जैसे हमने सुना था आर्थराइटिस के ऊपर। क्या उसके ऊपर थोड़ा आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि योगा और आर्थराइटिस जो हमने किया था? आर्थराइटिस जो है वो समग्र प्रॉब्लम है, आई मीन होल बॉडी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिर्फ एक दो जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इट इज एजिंग प्रॉब्लम, योर एंटायर बॉडी एजेस। तो जो 65 जॉइंट्स है, 65 जॉइंट, ऑल एज। तो हम योगा थेरेपी जब इन्वॉल्व करते हैं, योगा इज ए होल बॉडी ट्रीटमेंट, इज अ माइंड बॉडी इमोशन ट्रीटमेंट। ठीक है? तो पूरा बॉडी को एक्सरसाइज होती है, जैसे आप आसपास डालिए, ब्रीथिंग प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस कीजिए। जब आप सारा आपका बॉडी कंप्लीट, योर होल बॉडी इज put into exercise, then what happens? The body, the joints get strong. तो आर्थराइटिस आपको, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है नी जॉइंट में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरा जॉइंट में आर्थराइटिस नहीं है, होता है, लेकिन ज्यादा नी में होती है। तो योगा करने से क्या होता है, होल बॉडी ना, होल जॉइंट, ऑल द जॉइंट एक्सरसाइज होती है, तो जॉइंट स्ट्रांग होती है। जब जॉइंट स्ट्रांग होती है, पेन कम हो जाएगा, स्टिफनेस कम हो जाएगा, मोबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा जो फिजियोथेरेपी वगैरह होती है वो लोकल होती है, सिर्फ एक जॉइंट को करते हैं या दो जॉइंट को करते हैं, सारा जॉइंट तो नहीं करते हैं। ठीक है? ओके, तो हमारा योगा इन्वॉल्व करने से इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ग्रेट एडवांटेज इन आर्थराइटिस। उसके साथ मेडिसिन लिमिटेड, देन फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, और सपोर्टिव नी कैप्स, लाइफस्टाइल चेंज, ये सब करने से आपको आर्थराइटिस कंट्रोल में आएगी। ठीक है? सिर्फ गोली खाने से नहीं होगा, सिर्फ योगा करने से भी नहीं होगा। इट हैज टू यस, बी कॉम्प्रिहेंसिव। इसी 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 को हम होलिस्टिक थेरेपी कहते हैं। होलिस्टिक थेरेपी ओके, में वो स्पिरिचुअल थेरेपी नहीं होती है। बाबा बाबा का स्पिरिचुअल थेरेपी नहीं है वो। होलिस्टिक थेरेपी मीन्स होल बॉडी थेरेपी। इट इज ओके, WHOLI, नॉट HOLI, होल बॉडी। तो होल बॉडी थेरेपी, दैट इज द योगा थेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, प्राणायाम, मेडिटेशन। क्यों प्राणायाम मेडिटेशन चाहिए आपको आर्थराइटिस में? क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है, स्ट्रेस हार्मोन को झुकाती है। अच्छा हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन्स इंप्रूव होती है। आपका जॉइंट्स को अच्छा सर्कुलेशन मिलती है, अच्छा एक मूड अच्छा होती है।
तो प्राणायाम मेडिटेशन में होती है। और योगा करने से, योगासन और एक्सरसाइज करने से आपका सारा बॉडी, सारा जॉइंट, सारा मसल स्ट्रांग हो जाएगा। So it is a win-win situation. So it's an excellent additive or add-on. It's an add-on to your conventional treatment. Conventional Okay. treatment जो होती है, what is conventional treatment? Medicine, physio, exercise, surgery is the conventional treatment. इसको आप ऐड करेंगे योगा, तो योगा मीन्स नॉट जो टीवी में दिखाते हैं। आर्थराइटिस लोगों को वो सब नहीं करना है। आर्थराइटिस लोगों को योगा थेरेपी करना है। जैसे आप रश्मि डॉक्टर के पास जाइए और योगा थेरेपी सीखिए, यूट्यूब डाल के, और फिर क्या वो टीवी ऑन करके, वो जो मरोड़ते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं जॉइंट को, वो योगा नहीं करना है सीनियर सिटीजन। जैसे वज्रासन, वक्रासन, मकरासन। मकरासन इज फाइन, दिस पद्मासन एंड देन वीरासन। ये जो जॉइंट अक्यूट फ्लेक्शन होती है वो नहीं करना है, आर्थराइटिस लोग नहीं करना है। तो आपको फिर शीर्षासन करो, नहीं। आपको योगा थेरेपी सिंपल टाइम, आई मीन एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च से जो बताया गया है, एक एक्सपर्ट की एडवाइस से आपको योगा थेरेपी करना है, देन यू विल फाइंड द ओके रिजल्ट, सर। द बेस्ट। सर और एक हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि हमें जैसे नीचे बैठने के लिए मना करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए। सो नीचे बैठना क्या कब से मना है या हमेशा हमें नहीं बैठना चाहिए? क्या लिमिटेशन है उसके बारे में पूछना चाहते नीचे बैठना, जब आप नीचे बैठेंगे हैं? तो आपका जॉइंट फुल बेंड होना पड़ेगा। सी इट हैज टू कंप्लीटली फ्लेक्स टू 110 डिग्रीज। इंडियन स्क्वाटिंग, जो इंडियन जो है, हम लोग खाना खाते हैं बैठ के, या नमाज पढ़ते हैं, या पूजा करते हैं, देन वी सिट विद द नी जॉइंट कंप्लीटली बेंड। ओके। जब आपका कार्टिलेज घिस चुका है, आपको मूवमेंट तकलीफ है, मूवमेंट बेंड करना मुश्किल है, तो आप अगर स्क्वाट करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पेनफुल। आपको वहां जमीन से उठना मुश्किल हो जाएगा, और आपका बैक स्प्रेन हो जाएगी, कार्टिलेज में डैमेज हो जाएगी। दैट इज वाई वी एडवाइज, दो द इंडियन systems are good, like puja or Indian toilets, so they are good, but not for an arthritis patient. Indian toilet use करना, पूजा के लिए नीचे बैठना नहीं। यू हैव टू सिट ऑन ए हाई राइज चेयर, जो आसानी से आप उठ सके। आपको आसानी से उठना है, आपको तकलीफ से नहीं उठना है। तो अगर हाई राइज चेयर, मामूली चेयर के ऊपर एक तकिया डाल के बैठना है आपको, ताकि लो राइज चेयर में नहीं बैठना है। स्क्वाट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम इंडियन टॉयलेट यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होती है, हम बेड करने से अब्डामन से प्रेशर आती है, तो देन इवैक्यूएशन भी इजी। दैट इज ऑल व्हेन यू आर यंग। जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, आपका जॉइंट घिस गया है भाई, अगर घिसने वाले जॉइंट के ऊपर आप ऐसा स्क्वाट कर देंगे, देन you are going to increase the pain and progression of the disease also। ठीक है, तो ओके। दिस इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल चेंज। आपको चेंज बदलना है, और बदलना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बदलना है? जो अब यंग एज में जो करते थे ना, तो अभी सावधानी से करते। तो स्क्वाटिंग, इंडियन टॉयलेट्स, सो और भी अगर आप सर वापस आने तक और भी अगर किसी को क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं आपके से। तो आपको मैसेज मिल गया ना रश्मि जी? यस यस, मिल गया सर। स्क्वाटिंग, इंडियन टॉयलेट्स And we should use an नहीं high करना है। release chair. Yes. Okay.
सर अगर हम योगा थेरेपी को अडॉप्ट करते हैं बहुत दिनों तक, तो बाद में ये High चांसेस rise है कि chair, commode. हाई रिस्क। ओके, दैट शुड बी द ऑप्शन। सर आप इन जनरल अगर हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस का अगर बात करें, कि किसी का क्वेश्चन है क्या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हेरेडिटरी है क्या, वो कैसे हो सकता है, और उसकी क्या हम अप्रोच कर सकते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस का, कि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन यही है रोमेटॉइड आर्थराइटिस में कि सुबह-सुबह उठने के बाद उनको जो नंबनेस है और वो स्टार्ट हो जाती है। उनकी थोड़ा बहुत क्वेश्चन्स है रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, कि क्या वो हेरेडिटरी है और कैसे उनके लक्षण को हम ये करें? देखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एंटायरली डिफरेंट डिजीज, वो अलग बीमारी है। वो सिस्टमिक बीमारी होती है, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व होती है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में छोटे छोटे जॉइंट्स लाइक फिंगर जॉइंट, हैंड जॉइंट, फुट जॉइंट एंड ऑलमोस्ट ऑल जॉइंट्स इन द बॉडी, प्लस लंग चेंजेस और हार्ट चेंजेस सब होती है। तो ये क्यों होती है? जैसे मैंने आपको पहले बता रहा था कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होती है कि आपका बॉडी प्रोटीन आपके खिलाफ काम करती है, और आपका बॉडी प्रोटीन कैसा उसका, तो उसका कैरेक्टर चेंज हो जाती है। एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से या आपका स्ट्रेस की वजह से सडनली सडनली द प्रोटीन हुँ, हुँ। changes its, its behavior. So there is a triggering factor. There is a triggering factor. ओके। Hello, यस सर, आई एम सुनाई दे रहा है? नॉट। यस Are सर, you able to सुनाई hear? दे रहा है। या सर, सुनाई दे रहा है सर। Are you able to hear, Dr. Rashmi? यस सर, आई एम एबल टू हियर यू। So, so, so ये triggering factor, ये एक वायरल फीवर या कोविड, एनी वायरल फीवर, स्ट्रेस, ड्रग्स can suddenly trigger change in the protein, and the proteins will go and get deposited in the joint और बीमारी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों के लिए हेरिडिटरी भी हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नॉट हेरिडिटरी, लेकिन रूमेटॉइड या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हेरेडिटरी हो सकती है। ओके। यस सर। अभी आपका वॉइस थोड़ा स्ट्रक हो रहा है सर। not all rheumatoid arthritis are hereditary, but hereditary has got a strong component in rheumatoid arthritis. तो ओके। ये अलग बीमारी है, इसका इसका इलाज भी अलग होती है। ये मोनली ड्रग ड्रग ओरिएंटेड है, ये है क्या ट्रीटमेंट होती है। उसके साथ योगा थेरेपी, प्राणायाम, मेडिटेशन इज मैंडेटरी इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, क्योंकि सारा जॉइंट्स अफेक्ट होती है। देन ड्रग थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ड्रग थेरेपी एलोपैथी हो सकती है, आयुर्वेदा हो सकती है, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, कुछ भी हो सकती है, जो आप लेना चाहते हैं। ठीक है? ओके यस। सर, नाउ वी आर सर, आई जस्ट वांट टू फाइनल मैसेज कि आप पब्लिक को क्या देना चाहते हैं, कि एक 3 गोल्डन नगेट्स आई कैन से, उसके साथ हम हमारी लाइव स्ट्रीम को ये करेंगे, समाप्त करेंगे। देखो, आपका जॉइंट को बचाइए। हार्ट को जैसे आप केयर करते हैं, ऐसा अपना जॉइंट्स को केयर कीजिए। अगर जॉइंट आपका बीमार हो गया, तो आपका चलना फिरना अफेक्ट हो जाएगी। और अगर अफेक्ट होगी, तो आपका मोटापन बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट डिसीज बढ़ जाएगी, और आपका प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो सेव योर जॉइंट। ओके। आपका जैसे आप अपने वाइटल ऑर्गन को सेव करते हैं, आप ऐसा अपना अपना जॉइंट को अच्छा एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, डाइट, गुड डाइट, और एक नियमित जीवन शैली से आप अपना जॉइंट को बचा सकते हैं। आपका जॉइंट बचाइए। अगर जॉइंट बच गया है, तो आपका जान भी बच जाए। व्हील चेयर पे नहीं जाएंगे आप। व्हील चेयर पे चले गए, तो आपको समझ में आ जाएगा तो आप किधर, वेयर यू आर हेडिंग टू। ठीक है? So if you want to be on your feet in old age, take care of your joints with good exercise, good lifestyle, good diet, yoga, meditation, pranayam, and moderate life. You know, moderate. क्या है existence.
जो सीवियरिटी या अति अति कुछ ज्यादा नहीं करना है, और मोटापन कंट्रोल, आलसीपन कंट्रोल, ठीक है, और एक खुशहाल जिंदगी अगर आप लीड करेंगे, देन यू विल हैव गुड जॉब्स। Thank you so much, ओके sir. रश्मि जी, Thank you so much, sir. थैंक यू। ये बहुत राइट, धन्यवाद सो नाउ व्हाट विल आपको हैपन इस दिस, थैंक यू, hope it was useful to you, ये and definitely to sir, it your was so useful. audience. Right, okay, fine, fine, Yes, shall sir. we exit There is now? one more, sir. There is one more question. Just we got it now. एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. इज इट एनी आंसर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए? एक क्वेश्चन. Ankylosing ankylosing spondylitis is ankylosing means stiff, आपका स्पाइन स्टिफ हो जाएगा। थोड़ा हेलो, क्रैक हो रहा है आपका. यस सर, नाउ इट इज ऑडिबल. नाउ इट इज हेलो, ऑडिबल सर. कैन यू हियर मी? यस सर, नाउ आई कैन हियर यू. कैन यू हियर मी? यस सर, आई कैन हियर यू. रश्मि जी, कैन यू हियर मी? यस सर, आई कैन हियर यू. आई कैन हियर यू. लेकिन आप तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ओके सर. आई एम ऑन. वी आर ऑन द स्टेज नेटवर्क ओनली इशू लाइक. है, आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे, लेकिन यू आर Yes, sir. हियरिंग But मी, we राइट? are. Yes, I can hear you, sir. You can continue. हाँ, ठीक है। आंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक आर्थराइटिस है जो टोटली डिफरेंट है। Thank you. राइट, सो आई, So, ओके, यू आर एबल टू हियर? yes, sir. Yes, sir. I can hear you. I can hear you, sir. हेलो, हम ankylosing spondylitis के बारे में बात कर रहे थे. और एक हमें क्वेश्चन आया कि ankylosing spondylitis को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए सर आंसर करने वाले हैं. वो एक सो दैट्स नटशेल. हमें सर से यही आंसर्स मिला कि एक है कि हमें डीजनरेशन को हम रोका नहीं जा सकते, बट सही लाइफस्टाइल से उसकी जो सिम्टम्स है उसको हम ये कर सकते हैं. सर, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो, यस सर. I can hear you, I can see you now. A lot of network issues now. So they were asking about या सर. ankylosing spondylitis. स्पॉन्डिलाइटिस. वो यस सर. टोटली अलग बीमारी है, और ओके. इट इज ए स्पाइन और हिप की बीमारी होती है। नेक, हम्म. लोअर एंटायर स्पाइन स्टिफ हो जाती है, और आपको बेंड करने में, सांस लेने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ HLA-B27, एक जो चीज होती है जो ये जॉइंट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए आपको ड्रग्स चाहिए, योगा थेरेपी चाहिए, फिजियोथेरेपी चाहिए, एक्सरसाइज थेरेपी चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, और डाइट आपको चाहिए, और दैट. माइंड कंट्रोल बहुत चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है। तो एंकोलोजिंग ओके. स्पॉन्डिलाइटिस टोटली डिफरेंट बीमारी, और बहुत कम लोगों में एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, 1% या 2% में। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा है, हाँ, या. एटलीस्ट 10 to 13% लोगों में होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस 3% लोगों में होती है। एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 0.1 0.2 इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, आप अपने आप इलाज नहीं कर। यस सर. उसके कंट्रोल करने के लिए मेन है हमारी कन्वेंशनल थेरेपी के साथ हम योगा थेरेपी और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फ्लेमेशन को डेफिनेटली रोकें. फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, योगा थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, स्विमिंग, जो ओके. एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में recommended है। स्विमिंग इज recommended because it is a gravity eliminated exercise. Swimming यस. strongly recommended, yoga strongly recommended। समझ में आ गया ना? तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज a challenging problem। ओके. ओके सर. धन्यवाद सर. आप आपके बिजी शेड्यूल में हमारे साथ आए और आपके सारे
नॉलेज को हमारे साथ शेयर करें, हमारे ऑडियंस के साथ आपने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से आपके साथ मिलेंगे कुछ और एपिसोड के साथ। थैंक यू मिलेंगे सर। जरूर। थैंक यू, थैंक्स फॉर द इनवाइट एंड यस, गुड नाइट। गुड नाइट। We are ending our stream. Thank you everyone for joining.